Hello everyone. Today I am going to discuss some important topic of environmental biotechnology. So let's move ahead with the discussion of that topic. So the first point mentioned in the syllabus is about the environmental pollution. So environmental pollution क्या होता है? वातावरण में अगर कोई भी फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को कोई हार्म होता है, तो उसको हम लोग इन्वायरमेंटल pollution कहते हैं. So let's read the definition. So this is defined as any unfavorable change in the physical, chemical or the biological properties of air, land, water and soil etc are known as the environmental pollution. Basically land, air, water, इन सारी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट सारी एलिमेंट्स में अगर कोई भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज होता है तो उसको हम लोग जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं. इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो कॉज करता है, जो पोल्यूशन को कॉज करने वाला एलिमेंट होता है उसको हम लोग जो है पोल्यूटेंट कहते हैं. सो पोल्यूटेंट आर द एजेंट दैट कॉज सच एन अनफेवरेबल चेंज. सो बेसिकली पल्यूटेंट ही वो होता है एजेंट जो कि पल्यूशन को कॉज करता है. फिर पल्यूटेंट जो होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस हो सकते हैं जो कि ज़्यादा अमाउंट में इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं और उनका जो है जो हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है वो इन्वायरमेंट को होता है. फिर उसके बाद है pollution is the degradation of the environment caused by the addition of the harmful material to the air. बेसिकली पोल्यूशन से क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं. तो ये किस वजह से होता है? ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग परफॉर्म करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, और वही चीज़ें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लीड करती हैं पोल्यूशन को. So I hope the concept of the pollution is clear to you. Let's move ahead with the types of the pollution. So there are different types of the pollution, but in the syllabus mentioned air pollution, land pollution, water pollution, space pollution, thermal pollution, and the noise pollution. So these are the six pollution which are mentioned in the syllabus and important for you for your examination. So let's move ahead with the discussion of that type of the pollution. So there is important point about each year the pollution takes the lives of 1 lakh marine animals and more than 1 billion seabirds. सो हर साल अगर देखा जाए एक डेटा के हिसाब से हर साल जो होते हैं 1 लाख जो मरीन जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं और 1 बिलियन जो सी बर्ड्स होते हैं उनकी जो है डेथ होती है जस्ट बिकॉज ऑफ पोल्यूशन. And living in area with the higher air pollution increases a person risk of dying from the lung cancer by 20% compared to living in less polluted area. So अगर कोई person जो है more air polluted area में रह रहा है तो उसके मरने के chances जो हैं 20% ज़्यादा होते हैं as compared to the person who is living in the normal नॉन पोल्यूटेड एरिया. सो अगर आप किसी भी पोल्यूटेड एरिया में रह रहे हो देन इट विल ऑल्सो अफेक्ट योर लाइफ स्पैन. सो this is the effect of the pollution. Now move ahead with the discussion about the pollutant. So pollutant is a material of energy introduced into the environment that has unintended consequences. So I have already discussed that a pollutant is a agent that cause the pollution and it is present in a large amount in the environment which affect the composition of the gases which are present in the atmosphere as well as it affect the environment and the human health. And if we classify the pollutant, so pollutant can be classified as the secondary pollutant and the primary pollutant. प्राइमरी पोल्यूटेंट वो होते हैं जो कि डिस्चार्ज होते हैं फ्रॉम द सोर्स ऑफ देयर ओरिजिन. मतलब ये जहाँ से रिलीज़ होते हैं वहीं से ये जो है पोल्यूशन करने का काम करते हैं. लाइक अगर CO2 का जो रिलीज़ होता है, SO2 का जो रिलीज़ होता है, NO का जो रिलीज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सो ये सारे जो हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट के सोर्स हैं. और अगर सेकेंडरी पोल्यूटेंट की बात करें तो दे आर फॉर्म्ड व्हेन द पोल्यूटेंट सच एज NO and ozone react in the environment to generate new products such as petrochemical smoke and the formaldehyde. So
प्राइमरी पोल्यूटेंट अपने सेम, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये अपने सेम फॉर्म में ही पोल्यूशन कॉज करेगा। लेकिन सेकेंडरी पोल्यूटेंट में क्या है, जैसे हम लोग ओजोन ले लेते हैं प्लस एनओ ले लेते हैं, सो ये दोनों रिएक्ट करेंगे तब ये जो है पेट्रोकेमिकल स्मोक बनाएंगे, जो कि सो ये जो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट की तरह काम करेंगे। सो I hope the primary pollutant and the secondary pollutant concept will be clear to you. So let's move ahead with the discussion of the types of the pollution. So first is the air pollution. So अगर एयर का जो प्रॉपर्टी होता है, अगर उसमें कोई भी फिजिकल, केमिकल या फिर कोई बायोलॉजिकल चेंजेस एयर की फीचर्स में होते हैं, तो वो जो है एयर पोल्यूशन कहलाता है। लाइक एयर है, एयर में कोई भी फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल चेंज जो होता है, उसको हम लोग जो है एयर पोल्यूशन कहते हैं। अब एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या होता हो सकता है, तो बहुत सारा इम्पैक्ट हो सकता है। पहला तो यही है कि अगर कोई पर्सन मोर एयर पोल्यूटेड एरिया में रह रहा है, तो उसके जो मरने के चांसेस हैं वो 20% जो है बढ़ जाते हैं। फिर है हमारा द पोल्यूशन ऑफ द एयर बाय द टॉक्सिक गैसेस, डस्ट एंड द स्मोक हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द प्लांट, एनिमल एंड द ह्यूमन। सो अगर एयर पोल्यूशन हो रहा है तो इससे बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं, एनिमल को भी, ह्यूमन को भी और प्लांट को भी। Now, in case in the atmosphere there is a specific percentage of the gases, the change in the composition of these gases, whether the positive or the negative, is detrimental to survive. As we all know that in air about 78% of the nitrogen is present, um, and 21% is oxygen, and around 0.03 or 0. Yes, 0.03 is I think CO2. So this is basically and if you are not considering this, then 1% other gases. In other gases there are lots of gases included, including the CO2. सो ये जो होता है हमारा एक नॉर्मल कॉम्पोजिशन होता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस का। लेकिन जो एयर पोल्यूशन होता है, इनके कॉम्पोजिशन को वो या तो डिक्रीज कर सकता है या फिर इंक्रीज कर सकता है, या इंक्रीज होना और डिक्रीज होना, जो कॉम्पोजिशन है दोनों ही हमारे लिए काफ़ी हानिकारक हैं सरवाइव करने के लिए। लाइक अगर हमारे एटमॉस्फेयर में इन गैसेस का कॉम्पोजिशन अगर चेंज होता है तो हमारी सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाएगी। सो ये जो है इम्पैक्ट है एयर पोल्यूशन का। नाउ द सोर्सेज ऑफ द एयर पोल्यूशन। सो एयर पोल्यूशन के सोर्सेज जो होते हैं वो दो हो सकते हैं। एक नेचुरल सोर्स हो सकता है, जो नेचुरल एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे भी एयर पोल्यूशन होने के चांसेस होते हैं, और एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, या फिर जो सिंथेटिक बोल सकते हैं हम लोग, वो सोर्सेज होते हैं। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से नेचुरल सोर्सेज होते हैं एयर पोल्यूशन के। So, सबसे पहला है वोल्केनिक इरप्शन, साइक्लोन, वाइल्ड फायर्स, डस्ट एंड सैंड स्टॉर्म्स एंड द बायोलॉजिकल प्रोसेस। सो ये सारे जो हैं फैक्टर्स हैं जो कि एयर पोल्यूशन को कॉज करते हैं। And if I talk about the anthropogenic sources of the air pollution, so it is like industrial process, transportation, urbanization, deforestation, chemical uses, residential heating and cooking, waste management, construction and demolition, agriculture and power plants. So these are the anthropogenic sources which cause the air pollution. So up to now we have discussed about what is pollution, देन हम लोगों ने डिस्कस करा पोल्यूटेंट क्या होता है, एंड आफ्टर पोल्यूटेंट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द type of the pollution, and in the type we discussed about the air pollution and its impact as well as the sources of the air pollution.
नाउ लेट्स सी अबाउट द हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन। सो सबसे पहला जो इफ़ेक्ट होता है एयर पोल्यूशन का वो ह्यूमन हेल्थ को होता है। सो देखते हैं इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है वो जो है इरिटेशन कॉज करता है आइज़ में, नोज़ में, थ्रोट में, एज़ वेल एज़ डैमेज टू द लंग्स, एक्यूट एंड द क्रोनिक अस्थमा। सो SO2 क्या करता है, इरिटेशन कॉज करता है, इरिटेशन कॉज करता है आई में, नोज़ में, थ्रोट में, और ये हमारा जो लंग्स होता है उसको भी अफेक्ट करता है। और क्रोनिक और एक्यूट अस्थमा मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अस्थमा भी कॉज करता है। सो SO2 का ये इम्पैक्ट है ह्यूमन हेल्थ पे। अब NO2 देखते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड। सो ये जो है क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज़ को कॉज करता है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड वेरी टॉक्सिक होती है गैस ये, इंड्यूस द हेडेक, लॉस ऑफ द विजन, decreased muscular coordination and severe effect on the belly of a pregnant women। सो कार्बन मोनोऑक्साइड का भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ पे। सबसे पहले तो ये हेडेक कॉज करता है, फिर इसकी वजह से जो आँखों की रोशनी होती है वो भी इंसान लूज़ कर देता है। फिर जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है वो भी कम हो जाता है। एंड ये जो होता है सीवियर इफ़ेक्ट कॉज करता है जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं उनके belly पर। So this is the impact of the CO on the human health। Now photochemical smoke causes the respiratory problems। जो photochemical smoke होते हैं ये respiratory problem cause करते हैं। एंड पेट्रोकेमिकल स्मोक भी जो होते हैं वो भी respiratory problem को cause करते हैं। लाइक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सो सेकेंडरी पोल्यूटेंट में हम लोगों ने O3 प्लस NO को लिया था। इससे जो है हमारा पॉल्यूशन कॉज हो रहा था। और ये कौन सा पॉल्यूशन कॉज कर रहे थे, पेट्रोकेमिकल स्मोक, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए और इन्वायरमेंट दोनों के लिए। नाउ लीड जो होता है ये सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन इट विल बी लेड। सो लीड डैमेजेस द ब्रेन एंड सेवरल नर्वस सिस्टम, किडनी। सो जो लेड होता है PB ये जो है डैमेज करता है ब्रेन को और नर्वस सिस्टम को, एज वेल एज ये किडनी को भी अफेक्ट करता है। और मरकरी जो होता है ये मिनीमाटा डिजीज़ को कॉज करता है। एंड ये जो है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। नाउ इफेक्ट ऑन द प्लांट। सो प्लांट पे क्या इफेक्ट होता है, सो एयर पोल्यूटेंट अफेक्ट द प्लांट बाय एंटरिंग थ्रू द स्टोमेटा एंड डिस्ट्रॉय द क्लोरोफिल। सो एयर पोल्यूटेंट जो होता है, मान लेते हैं ये लीफ का स्ट्रक्चर है। सो लीफ के स्ट्रक्चर में ये हमारा स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। सो जो एयर पोल्यूटेंट होता है वो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट के अंदर एंटर करता है। एंड एंटर करने के बाद जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसको जो है ये डिस्टॉर्ट करता है, या फिर उसके स्ट्रक्चर को वो जो है पूरी तरीके से ख़राब कर देता है। Damages the leaf structure and causes the necrosis, part of leaves which is dead known as the necrosis, loss of chlorophyll, dropping of the leaves। सो बेसिकली जब स्टोमेटा के थ्रू एयर पोल्यूटेंट लीफ के अंदर जाता है तो उसमें क्या करता है, लीफ के स्ट्रक्चर को वो पूरी तरीके से ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट की लीफ का स्ट्रक्चर जो होता है वो ख़राब हो जाता है, निक्रोसिस होने लगता है। मतलब जो ख़राब लीफ होती है, जो डैमेज्ड लीफ होती है उसको जो है हम लोग निक्रोसिस कहते हैं। और जब लीफ जो है एकदम ख़राब हो जाती है तो उससे क्या होता है, पत्तियां जो हैं पेड़ से गिरने लगती हैं। नाउ ओजोन कॉजेज द फ्लैक्स ऑन लीफ सरफेस, प्रीमैच्योर एजिंग एंड द निक्रोसिस। जो ओजोन होता है वो प्रीमैच्योर एजिंग मतलब जो लीफ होती है उसको समय से पहले ही उसका मैच्योरेशन कर देता है, जिसकी वजह से वो लीफ जो है जल्दी गिरने लगती है और उसको बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उसकी मतलब उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, वो जो है अफेक्ट होते हैं। सो बेसिकली ये प्लांट को जो है अफेक्ट करता है। नाउ मूव अहेड विद द इफेक्ट ऑन द मटेरियल। So mixing of the air pollutant and the moisture in the air causes the acid rain, which in turn balance the building and the monuments। They also affect the aquatic life। So मटेरियल में बात करें तो एयर पोल्यूटेंट जो होता है वो
बहुत सारे मटेरियल्स को भी जो है अफेक्ट करता है। यू नो अबाउट द वेरी फेमस प्लेस दैट इज़ आगरा, एंड देयर इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट्स, और देयर इज़ अ ताजमहल। सो ताजमहल के बारे में सबको पता होगा। सो ताजमहल का जो कलर है, वाइट कलर, वो भी जो है अफेक्ट हो रहा है ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि एक एयर पोल्यूटेंट है। सो ये जो है मॉन्यूमेंट्स और मटेरियल्स जो होते हैं उनको भी अफेक्ट करता है। और जो एयर पोल्यूटेंट हैं वो एक्वेटिक लाइफ को भी काफ़ी हद तक अफेक्ट करते हैं। नाउ कंट्रोल मेजर, हम लोग कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं ताकि एयर पोल्यूशन को कम किया जा सके। तो कुछ जो सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस होते हैं, जैसे डिस्पर्जन हो गया, ग्रेविटेशनल सेटलिंग हो गई, फ्लक्चुएशन हो गया, एब्जॉर्प्शन, रेन वॉश आउट हो गया, ये सारे जो हैं कुछ टेक्निक है जिससे जो है एयर पोल्यूशन को हम लोग जो है कम कर सकते हैं। नाउ सोर्स कंट्रोल, सो कुछ हम लोग जो है सोर्स कंट्रोल देखते हैं। तो सबसे पहले हमें अनलीडेड पेट्रोल का यूज़ करना चाहिए। फिर हमें ऐसे फ्यूल का यूज़ करना चाहिए जिसमें सल्फ़र कंटेंट जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो, और ऐश कंटेंट भी जो है बहुत कम हो। लाइक ऐसे फ्यूल को यूज़ करना चाहिए जिसमें उसको बर्न करने के बाद जो ऐश होता है वो जो है बहुत कम अमाउंट में निकले। और जो हमारा फ्यूल होना चाहिए उसमें जो सल्फ़र कंटेंट हो वो काफ़ी कम होना चाहिए। तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। इनकरेजिंग द पीपल टू यूज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वॉक और यूज़ द बाइसिकल। सो हमें लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि वो जो साइकिल होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ताकि जो उनके पर्सनल जो हम लोग व्हीकल होते हैं उनको यूज़ करने से काफ़ी इन्वायरमेंट को अफेक्ट होता है। तो अगर वो साइकिल का यूज़ करेंगे तो उनकी हेल्थ भी सही रहेगी, और हेल्थ के साथ ही साथ वो जो है कोई भी इन्वायरमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा। लाइक अगर वो साइकिल यूज़ कर रहे हैं तो इससे कोई इन्वायरमेंट को हार्म नहीं होगा, और इन्वायरमेंट पोल्यूशन को हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं। एंड देन है हमारा इंडस्ट्री एंड वेस्ट डिस्पोजल साइट्स शुड बी सैचुरेटेड आउटसाइड द सिटी। सो जो इंडस्ट्री और जो वेस्ट डिस्पोजल साइट होती हैं, लाइक जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, केमिकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, सो ये सारी इंडस्ट्री जो है मतलब जो ये जो है सिटी से काफ़ी दूर होनी चाहिए। और emission rate should be restricted to the permissible level by each and every industry। जो इमिशन रेट है, लाइक कोई इंडस्ट्री है उसमें से कोई केमिकल या फिर कोई भी चीज़ जो है एग्जॉस्ट के थ्रू बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, तो उनको जो है एक रेट जो है लिमिट कर देना चाहिए कि इतने रेट तक ही आपकी इंडस्ट्री से इतना जो के पल्यूटेंट्स हैं वो जो है रिलीज़ हो सकते हैं। अदरवाइज़ जो पर्सन है अगर उसके बियॉन्ड जो है वो पोल्यूशन कॉज कर रहा है, देन उसको जो है पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। इससे जो है हम लोग इन्वायरमेंट के पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ द इक्विपमेंट यूज टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन। सो बेसिकली here there are some name of the equipment or the mechanical devices which can be used to reduce the air pollution. So basically it is a wet scrubber, cyclone bag house filter. So basically it is a filter which filter out the pollutant from the air and gives out the pure air which is free from the pollutant, and hence it is good for the human health. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एयर पोल्यूशन। सो एयर पोल्यूशन में हमने इसकी डेफिनेशन देखी, फिर इसका इम्पैक्ट देखा, फिर इसके सोर्सेज देखे जो कि नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक दोनों थे, फिर इसका इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ पर क्या होता है, प्लांट पर क्या होता है, एनिमल पर क्या होता है, मटीरियल पर क्या होता है, एंड देन कंट्रोल मेजर देखे, फिर सोर्स कंट्रोल क्या होता है, एंड देन जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वो। So we have covered all these points. Let's move ahead with the discussion of the another type of the pollution, that is the water pollution. I hope you all know about the water pollution, but I just go through the topic. So
वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? वाटर में अगर कोई भी फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल चेंज आता है, तो उसको हम लोग वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। जैसे पॉल्यूशन, कोई भी टाइप का पॉल्यूशन हो, जो नेम है पॉल्यूशन का उसमें, जैसे एयर था तो एयर की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज आता है तो एयर पॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे ही अगर वाटर है तो वाटर की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज आता है तो इसको हम लोग वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। अगर हम लोग लैंड या फिर सॉइल पॉल्यूशन की बात करें तो सॉइल की प्रॉपर्टी में अगर कोई भी फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल चेंज आता है तो उसको सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं। सो यू कैन मेक अ वेरी इजी डेफिनेशन ऑफ द पॉल्यूशन रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ द पॉल्यूशन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। सो वाटर पोल्यूशन क्या होता है? वाटर की क्वालिटी में कोई भी फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल चेंजेस आता है तो उसको हम लोग वाटर पोल्यूशन कहते हैं। एंड वाटर पोल्यूशन को कॉज करने वाले एजेंट को हम लोग क्या कहते हैं? वाटर पोल्यूटेंट। सो वाटर पोल्यूटेंट में कॉज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द ह्यूमन एंड द एक्वेटिक लाइफ। जो वाटर पोल्यूटेंट होता है ये हार्मफुल इफेक्ट को कॉज करता है ह्यूमंस के ऊपर भी और जो एक्वेटिक लाइफ होती हैं उनके ऊपर भी। लाइक ह्यूमन जो हम लोग पानी को पीते हैं, सो अगर पानी में गंदा है या फिर पोल्यूटेड वाटर है तो ये हमारे हेल्थ को अफेक्ट करेगा। और ऐसे ही एक्वेटिक लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है? सो पानी के अंदर रहने वाले जितने भी जीव हैं, अगर पानी जो है गंदा है तो